Hello everyone. Good evening. Am I audible to you? Okay, thank you Abhishek. Thank you Riddhi. Good evening. We'll just wait for 2 to 3 minutes more. Some students are still joining the lecture. So all of you are from 9th standard Sanskrit composite. Am I right? Is there anybody who is from Sanskrit entire? Please let me know in the chat box. So this is the second lecture for Sanskrit composite 9th standard. आपने अगर फर्स्ट लेक्चर मिस किया है डोंट वरी, वो भी रिवाइज होगा. अद्वैत, अद्वैत फ्रॉम घाटकोपर, आर यू फ्रॉम संस्कृत एंटायर बेटा? देन आपका लेक्चर मंडे को रहता है. योर लेक्चर इज ऑन मंडे. विल स्टार्ट इन जस्ट 2 minutes. Aryan will just start in 2 minutes beta. Good evening everyone. Namo Namah. Shubha Sayankalah. Okay students, so we're going to start with the lecture. So we have already started because with Sugama Sanskritam part in the first lecture of you, Sanskrit composite wala lecture. So students, in that we have, I think, completed Chitrapada Koshaha. Okay. कुछ शैतान बच्चे अपना काम करना स्टार्ट कर दिए हैं. Okay, thank you for your shaitani by the way. Okay, we're going to continue with Sugama Sanskritam. So Chitrapada Kosha हमने देख लिया, and now we have to focus on the second part, which is very important again, and that is Sankhya. So before starting with the Sankhya, as it is a very known part and an easy part, I would like to ask you all, is there anybody who can orally tell me all the Sankhyas from 1 to 30? Is there anybody honestly, without seeing, can orally say all the Sankhyas in Sanskrit from 1 to 30? Okay, only one hand. Aryan. Okay, let's give chance to Aryan. Hello, Aryan. Yes, miss. Yes. So you know all the Sankhyas from 1 to 30, right? Yes, yes. Okay, start it. एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशति, एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षट्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति, 63. Wow, that's fantastic, Aryan. Very nice, very nice. Thank you so much, Aryan. Okay, so students, now the second task is there anybody who has learned Sankhyas from 31 to 50? थोड़ा सा टास्क जो है डिफिकल्ट हो गया. Sankhya's from 31 to 50.
Okay, still we have the volunteers. Let's give chance to Ankita. Hello, Ankita. Ankita from DN Nagar. Okay, she's not replying. Let's give chance to Deep. Deep from Ghatkopar. Good evening, ma'am. Yes, good evening, Deep. Ma'am, can I start? Yes, start. एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयोत्रिंशत् चतुर्त्रिंशत् पञ्चत्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत् एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् पञ्चाशत्. Wow, that's very nice. Okay. So, is there anybody who can recite all the sankhya's from 1 to 50? Come on, new task again. 1 to 50, all the sankhya's. Please raise your hand. Who is this? Jay? Jay, please raise your hand. Hello, Jay. Hello, ma'am. Can you hear me? Hello. Yes, I can hear you. Can I start? Yes, start. एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पञ्चविंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः त्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयोविंशत् चतुर्विंशत् पञ्चत्रिंशत् षड्विंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टत्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत् एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रयचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् पञ्चाशत्. Wow, that's fantastic. सिर्फ आपने एक मिस किया and that is 26. Okay. So no problem at all. Thank you so much. Jay. Okay. So we're going to continue with the संख्या. So अभी देखो ये 2-3 लोग ही आंसर्स दे रहे हैं. 1 to 50 संख्या हमारा स्टिल लर्न नहीं है, तो हमें लर्न करना पड़ेगा भाई, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन 9th एज वेल एज 10th. सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फॉर ऑल ऑफ यू. जिनका लर्न है प्लीज रिवीजन कर लो, जिनका लर्न नहीं है प्लीज फोकस करो, क्योंकि अभी ये रिवीजन करने के बाद मुझे ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन चाहिए. ओके, चलो. सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू रिसाइट. एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश. Students, here the important spelling is of trini. Tri is dirgha and ni is rasva. What is dirgha and rasva? Simply tri is long and ni is short. Again observe the second important spelling chatwari. Ri is short. So orally हम लोग बोलते हैं but लिखते वक्त मिस्टेक हो जाता है, ऐसे नहीं होना चाहिए. Please observe the spelling. Okay, so don't write it now. I'll give you some time afterwards because it is very easy part. Okay, we'll move ahead. Next we have ekadasha, dwadasha, trayodasha, chaturdasha, panchadasha, shodasha, saptadasha, ashtadasha, navadasha, vimshatihi. Again, here the important spelling is द्वादश. जोड़ाक्षर है, द एंड व को कंबाइन करके लिखना है. Then the important spelling is of चतुर्दश.
While pronouncing Chaturdasha, R is pronounced after T and hence put Rafar on the D. You have to put Rafar on consonant D. Chaturdasha. Many a times हम T पे ही Rafar दे देते हैं. Ref, which is wrong. So spelling is Chaturdasha. D पे रेफ होना चाहिए. Then the most important spelling is Shodasha. You can observe in this table, except Vimshati and Shodasha, all the words are of 4 letters. So हमें याद रखना है कि 16 जो है वो 3 letters का है. Shodasha, not dasha. It is dasha. Shodasha. Okay. Let's move ahead. एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पञ्चविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्. Very simple part. Here you have to focus on 28, which is Ashtavinshatih and not Ashta. Also in 18 there was Ashtadasha, not Ashtadasha. So 8 को हम बोलते हैं Ashta, 18 को हम बोलते हैं Ashtadasha and 28 को भी हम बोलते हैं Ashtadasha. Let's move ahead. एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पञ्चत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्. Again you can observe 38 is ashtatrimshat. So 18, 28 and 38 it is ashtatrimshat. Students, you can also observe in 26 we have used shad. द इनकम्प्लीट यूज किया है हमने. हलन तो उसको बोलते हैं, नीचे एक लाइन दिया हुआ है. एंड इन 36 वी हैव टू यूज ट, षट त्रिंशत. तो ये छोटे बहुत चेंजेस होते रहते हैं षड एंड षट में. ओके, एंड वी हैव अ लास्ट टेबल. एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पञ्चचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, पंचाशत्, 50. So students, here 48 you can observe now ashta ban gaya, not ashta. 18, 28, 38 we have to use ashta, and here in 48 we have to use ashta chatvarimshat. Please draw your attention towards that word, क्योंकि यही छोटे छोटे mistakes हम करते हैं, though we know how to recite. Okay students, so very easy part, revision of 8th standard. Now again we'll start oral practice. So this time you have to look at the screen and you have to recite one table. So जो लोग पहले डर रहे थे, जिनका लर्न नहीं है, अभी डरने की जरूरत नहीं है. Please participate in oral practice. You have to just read all the words. Okay. So now who is interested to read 1 to 10? Quickly raise your hands. Riddhi from Ghatkopar. Hello, ma'am. Yes, Riddhi, start reciting. एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश. Wow, that's nice, Riddhi. Thank you so much. Welcome. Okay, then let's give chance to Vaishnavi. Hello, Vaishnavi. Hi, ma'am. Yes, you have to recite from 11 to 20. Okay. एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पञ्चदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशति. Oh, very good, fast. But ये fast में एक छोटा सा mistake हो गया. षोडश नहीं, षोडश. Okay, recite it once again. एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पञ्चदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशति.
ओके, वेरी नाइस। और उसको एकादश मत बोलना, एकादश। ओके, नाइस नाइस, यू आर ट्राइंग वेल। ओके स्टूडेंट, so we have next with us as yes, we have Zoya with us. Hello Zoya. Hello. Yes Zoya, you have to recite from 21 to 30. एकोविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पञ्चविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः त्रिंशत्. Wow, that's nice Zoya, thank you. Hello Aryan. Aryan from JB Yes, Nagar. miss. Yes, miss. Yes, hello, recite from 31 to 40. Okay. एकत्रिंशत् द्वारिंशत् त्रयोरिंशत् चतुर्विंशत् पंचविंशत्. Wait, आपको स्क्रीन दिख रहा है? हाँ? स्क्रीन इज विजिबल टू यू? Yes, miss. हाँ, तो स्क्रीन पे देखो और आराम से बोलना। एकत्रिंशत्, यू हैव टू रिसाइट एज त्रिंशत्। त्रिंशत्. ओके, स्टार्ट। एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयोत्रिंशत् चतुर्त्रिंशत् पञ्चत्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत्. ओके, नाइस नाइस। अभी दो वर्ड्स आपको फिर से एक बार मेरे साथ बोलना है। त्रयस्त्रिंशत्, 33। त्रयत्रिंशत्. त्रयस्त्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्। त्रयस्त्रिंशत्. चतुस्त्रिंशत्. चतुस्त्रिंशत्. वाओ, दैट्स फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच बेटा। Thank you, miss. Okay, we have next with us Swara. Swara from DN Nagar. Yes, miss. Yes, you have to recite from 41 to 50. एकचत्वारिंशत् द्वाचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुर्चत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् पञ्चाशत् पञ्चाशत्. So sweet voice of you. Just recite one word with me, that is dvichatvarimshat, 42. द्विचत्वारिंशत्. Okay, nice Swara, thank you. Welcome. Okay students, now we'll move ahead. ये तो छोटा सा easy part हमने कर लिया of 8th standard. Now in 9th standard we don't have only 1 to 50 numbers. Of course we have 51 to 100, but that will be for next lecture. Now we have to focus on the third part of Sugama Sanskritam, and that is Samayah. Again it will be a revision of 8th standard, I know, but this time in 9th we have the extended part of Samayah. मतलब 8th standard में हमने कुछ इस तरह से सीखा था कि 1 o'clock को हम बोलते थे एकवादनम. Please see everyone refer the screen. एकवादनम, एक means 1. अभी हमने रिवाइज किया है संख्या, तो it will be easy for you, I hope. And vadanam is o'clock. So 1 o'clock is ekavadanam. Dvivadanam 2 o'clock. Trivadanam 3 o'clock. चतुर्वादनम 4 o'clock. ये सब हमने 8th स्टैंडर्ड में सीखा है. स्टैंडर्ड नंबर्स हम लोग लिख सकते हैं. अभी हमें कुछ ऐसे नंबर्स सीखने हैं, ऐसा टाइम सीखना है कि सपोज घड़ी में 3:15 हो गया, या फिर 4:20 हो गया, 4:25 हो गया, कभी 45 हो गया, 3:55 हो गया, कोई भी ऑड नंबर, या फिर हमें बताना है कि 7:27 हो गया. तो ये सब चीजें हमें आज सीखनी है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो अभी आपको ऊपर लिखना है टॉपिक का नाम समयः. यू हैव टू नोट डाउन ऑल द 4 words. या सोहम इज आंसरिंग फॉर सम टाइम. करेक्ट सोहम?
Okay, quickly write it down, samayah, and write down the spelling. Ekavadanam, Dvivadanam, Trivadanam, Chaturvadanam. Ekavadanam, Dvivadanam, Trivadanam, Chaturvadanam. Please do writing practice. सिर्फ स्क्रीन का स्क्रीनशॉट मत ले लो. Samayah, name of the topic. Below that, write down 4 words. Ekavadanam, Dvivadanam, Trivadanam, Chaturvadanam. चलो, तो 4 के बाद क्या आता है? Let's move ahead. 5. तो 5 o'clock के लिए पंचवादनम. 6 o'clock षडवादनम. 7 o'clock सप्तवादनम. 8 o'clock ashtavadanam. Now quickly add these spellings to your notebook. Panchavadanam, Shadvadanam, Saptavadanam, Ashtavadanam. I'm stressing that shad, Shadvadanam, because it is half, not Shadavadanam. It will be Shadvadanam. Okay, students, quickly write down the 4 spellings from 5 o'clock till 8 o'clock. Okay, let's move ahead. We have 4 more spellings. 9 o'clock is Navavadanam. 10 o'clock is Dashavadanam. Oh, there is a spelling error in Dashavadanam. Please add Va after Dasha. You all are very smart, I know, so you can make a correction. Dashavadanam. Please add Va there. Then 11 o'clock is Ekadashavadanam and 12 o'clock is Dwadashavadanam. तो बस संख्या प्लस वादनम वर्ड को मिक्स कर देते हैं तो हम इजीली संस्कृत में समय टाइम बता सकते हैं. क्विकली राइट डाउन नववादनम, दशवादनम. प्लीज करेक्ट द स्पेलिंग. दशवादनम, एकादशवादनम एंड द्वादशवादनम. क्विकली स्टूडेंट्स, लास्ट 5 to 10 seconds. Okay, I hope then you are done with the writing. ये सब हो गया standard times. Now let's move ahead, and here we have few magical words, 3 magical words which will help us to tell the complicated time. ये भी शायद आपने 8th standard में सीखा रहेगा. For 15 minutes we have a word sapada. We have to add word sapada before the time. Then the word is sardha for 30 minutes and the word padona for 45 minutes. So students, simply here the word pada means quarter, 1/4 part, quarter. So sapada is 15 minutes after any time, sardha is 30 minutes after any time, and padona is 15 minutes for the next time or 45 minutes after some time. तो अभी इसको अगर ऐड करेंगे विथ टाइम तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, जो आपको नोट डाउन करना है. 7:15 will be sapada saptavadanam,
सी अभी यहाँ पे 15 मिनट्स के लिए पहले वर्ड लिखा है, रेड में मैंने वहां पे हाईलाइट किया हुआ है रेड कलर से. सो 15 मिनट्स के लिए हम पहले वर्ड ऐड करेंगे एंड देन वी हैव टू ऐड फॉर 7 o'clock दैट इज सप्तवादनम. In between two words you have to put that dash hyphen. सपाद सप्तवादनम 7:15. देन अभी अभी जो टाइम होने वाला है 7:30 को हम बोल सकते हैं सार्ध सप्तवादनम. बट ऑन द स्क्रीन वी हैव रिटन सार्ध दशवादनम 10:30. 30 minutes after something is called as sardha. I hope I'm clear. If you have any kind of a doubt, please tell your doubt in chat box. And the last is 2:45, which is Padona Trivadanam. Padona Trivadanam. Now students, here you have to observe last जो लिखा हुआ है 2:45 में, यहाँ पे 45 मिनट्स को हमने लिखा है पादोन एंड 2 को नहीं लिखा है हमने त्रिवादनम लिखा है. हमें नेक्स्ट नंबर लिखना है. क्यों ऐसा है? बिकॉज ये जो वर्ड है पादोन, उसका मीनिंग है पाद मीन्स क्वार्टर 15 मिनट्स एंड उन मीन्स लेस और लेफ्ट. सो 15 मिनट्स कम है फॉर 3 o'clock. हम ऐसा नहीं बता रहे कि 45 मिनट्स हो गए आफ्टर 2 o'clock, वो भी हम सीखने वाले हैं, डोंट वरी. बट अभी हम यहाँ पे बता रहे हैं कि 15 मिनट्स कम है फॉर 3 o'clock. So we have to write down like Padona Trivadanam. Though there is a number 2 present, but in words we have to write down as Trivadanam. Padona Trivadanam. So I hope you are copying all these things. Quickly copy it down. 7:15 Sapada Saptavadanam. Underline the word Sapada. 10:30 Sardha Dashavadanam. Underline the word Sardha. And 2:45 Padona Trivadanam. Underline the word Padona. Okay, let's move ahead. अभी आ गया the most important part. 3:10. पहले अंडरस्टैंड करो क्या क्या लिखा है स्क्रीन पे. जस्ट डोंट कॉपी इट. प्लीज 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 बी फोकस, अंडरस्टैंड इट. आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी. 3:10 को हम लिखेंगे. पहले 10 मिनट को 10 नंबर 10 को हम बोलते हैं दश इन संस्कृत. सो पहले हम वो वर्ड लिखेंगे दश. सी मैंने यहाँ पे स्पॉटलाइट डाल दिया है. देन हमें लिखना है अधिक. My next word is adhika. Why adhika? Because 10 minutes are more after 3 o'clock, and hence I have to write down the word adhika. Dasha adhika. 10 minutes ज़्यादा हो गए, more हो गए. And then we have Trivadanam. Trivadanam means 3 o'clock. Trivadanam is 3 o'clock. So Dasha adhika Trivadanam. It is okay, Aryan, no problem. I can understand. Okay. So दश अधिक त्रिवादनम. अभी ये दश अधिक को अगर हम संधि से कंबाइन करेंगे, मिक्स करेंगे, व्हाट इज संधि वो सब हम सीखेंगे. अगर ये दो वर्ड्स को मिक्स कर देंगे तो कुछ इस तरह से वर्ड बन जाता है दशाधिक त्रिवादनम. तो हमें ये इजी लगेगा, यू कैन गो फॉर दिस. बट अगर मैच द कॉलम में आया तो आपको ये भी कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए कि दशाधिक त्रिवादनम मीन्स ऑल्सो 3 o'clock and 10 minutes after 3 o'clock. Simply dasha and adhika combine हो गया and दशाधिक. I hope first वाला time clear है. We'll move ahead to the second time. 3:20. 3:20 में विंशति means 20. अधिक मीन्स 20 मिनट्स मोर. जैसे यहाँ पे अधिक ऐड किया था, यहाँ पे भी अधिक ऐड किया है. एंड देन 3 o'clock के लिए यहाँ पे ऐड किया है त्रिवादनम. देखो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ. फॉर 20 वी हैव विंशति, नॉट विंशति ही. ओरिजिनल वर्ड यूज करेंगे विंशति, वो विसर्ग को हटा दो. देन वी हैव टू ऐड अधिक एंड देन 3 o'clock को यहाँ पे ऐड करेंगे त्रिवादनम.
नाउ स्टूडेंट्स, अगर ये विंशति एंड अधिक को कंबाइन कर देंगे, मिक्स कर देंगे, तो हो जाएगा विंशत्यधिक। कैसे हो गया ये? सो द फर्स्ट वर्ड विंशति एंड्स इन ई एंड द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ अ। ई प्लस अ कंबाइन होके बन जाता है य। इसीलिए देखो यहाँ पे टी का ई नहीं दिख रहा है और अधिक का अ भी नहीं दिख रहा है, दोनों के जगह पे सिर्फ य दिख रहा है, विंशत्यधिक। मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ, द वर्ड विंशति एंड्स इन ई, द नेक्स्ट वर्ड अधिक स्टार्ट्स विथ अ, e plus a becomes y, and hence in the combined word there is विंशत्यधिक त्रिवादनम, विंशत्यधिक त्रिवादनम। आई होप ये क्लियर है। अब एक इजी ट्रिक बता देती हूँ, ये ई एंड अ का यही कैसे होता है, तो आप खुद से ई एंड अ को आगे पीछे मतलब रिपीटेडली बोल के देखो, य 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 ई एंड अ बोल रही थी मैं, बट अचानक ई एंड अ जैसे कंबाइन होने लगे, फाइनल मुझे रिजल्ट मिला य। आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हो, ई अ बिकम्स य। Okay students, so quickly copy all the things from this slide. It is very important, and if you have any kind of a doubt, please ask. Drop your doubts in chat box, raise your hands. We'll go slowly, don't worry. Please write it down. Okay, Aryan have some doubt. Yes, Aryan. Miss, in this E plus here, Miss, the first one is the original one or the second one is the original one? Original ones mean Vinshati is the original word ending in E. Okay. And Miss, and the Okay. upper one, Dasha plus it is equal to Dasha, Miss, Sha plus हाँ. it is? No. दश में दश एंड्स इन अ, श में कुछ भी नहीं है, श का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है, श शा शी शी कुछ भी नहीं है, मतलब श में अ मिक्स है, सो अ प्लस अ का हो गया आ, दशाधिक। Okay, Miss. ओके, Thank सो you. दो अ रहेंगे तो हम इजीली उसको लिख सकते हैं एज अ वन आ, दशाधिक। Okay, Miss. Thank you. या मोस्ट वेलकम। तो आर्यन का डाउट बहुत लोगों को हो सकता है, दश प्लस अधिक में दश एंड्स इन अ, नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ अ, and hence a becomes a, दशाधिक, and here first word ends in e, next word starts with a, e plus a becomes y. Okay, Jay is asking विंशति ends in विसर्ग। yes बेटा, विंशति ही is 20 in संख्या, बट यहाँ पे हमें ओरिजिनल वर्ड लेना है क्योंकि हम विसर्ग को अ के साथ मिक्स नहीं कर सकते। ओके, सो वी आर टेकिंग कंसीडरिंग द ओरिजिनल वर्ड। जैसे कि आपने अगर सीखा होगा तो देव इज ओरिजिनल वर्ड। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, सबके लिए इंपॉर्टेंट है जय का डाउट। जय ने पूछा है कि विंशति ही क्यों नहीं यूज किया, विंशति क्यों यूज किया, तो सिंपली देखो, हमने सीखा है देव वर्ड, देव इज ओरिजिनल वर्ड, इज अ नेम ऑफ टेबल, बट जब हम उसका पहला फॉर्म बनाते हैं वो हो जाता है देवह विथ विसर्ग। वैसे ये विंशति जो है ओरिजिनल वर्ड हमने यूज किया है, उसका पहला फॉर्म है विंशति ही, जो हमें यहाँ पे यूज नहीं करना है, जो हमें संख्या में यूज करना है। आई होप सबको अभी ये स्लाइड क्लियर है। कैन वी मूव अहेड? प्लीज लेट मी नो। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। आपका परमिशन मिल गया, सो आई एम मूविंग अहेड। नाउ वी हैव वन मोर टाइम हियर विद अस। अगर विंशति आपको समझा है तो पंचविंशति इजीली समझ में आ जाएगा। क्या है देखते हैं। 25 के लिए वी हैव वर्ड पंचविंशति, अगेन यहाँ पे विसर्ग यूज नहीं करना है। 25 मिनट्स मोर है, ज्यादा है, अधिक है, इसीलिए वर्ड ऐड किया है अधिक। एंड 3 o'clock के लिए वर्ड है त्रिवादनम।
अगेन पंचविंशति वर्ड जो है ई में एंड हो रहा है, तो हमने पहले ई को कंसिडर किया। अधिक इन अ, तो हमने अ को कंसिडर किया। ई प्लस अ, जैसे कि हमने बोलते बोलते ही सीख लिया, य बिकम्स य। सो आंसर इज पंचविंशत्यधिक त्रिवादनम। पंचविंशत्यधिक त्रिवादनम। पंचविंशत्यधिक त्रिवादनम। सो सिंपली ये हमें बताता क्या है कि इफ यू नो दिस रूल ई प्लस अ इज इक्वल टू य, आप 20 के टेबल में से कोई भी वर्ड को सॉल्व कर सकते हो। मतलब किसी ने पूछा 327, कॉम्बिनेशन तो यही होने वाला है। किसी ने पूछा 323, कॉम्बिनेशन यही होने वाला है कि अधिक। ओके, जैसे कि अगर यहाँ पे होता 27 तो क्या क्या आंसर होता, कौन बताएगा? ड्रॉप योर आंसर इन चैट बॉक्स क्विकली। If there is a time 327, 327, तो आंसर क्या होता? चलो चलो क्विकली बताओ, 27 को क्या बोलते हैं हम? अभी तक मुझे सिर्फ 2 आंसर्स मिले। आई वॉन्ट मोर आंसर्स इन चैट बॉक्स। ओके, 3, 4, 5, वाओ। एंड यू आर यस, दीप, जय, अंकिता, आर्यन, सोहम, अभिषेक, वाओ, परफेक्ट आंसर्स। रोशन, ट्राई बहुत अच्छे से किया है बट स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है रोशन। यस यस, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हमारा आंसर होगा पंचविंशत्यधिक के जगह पे होगा सप्तविंशत्यधिक त्रिवादनम। देखो यहाँ से यहाँ तक विंशत्यधिक त्रिवादनम पूरा स्पेलिंग एज इट इज, सिर्फ पंच के जगह पे हो जाएगा सप्त। कितना सिंपल है। इफ यू नो दिस स्पेलिंग विंशत्यधिक, आप कोई भी 20 का टेबल आराम से लिख सकते हो। यस श्रेयस, परफेक्ट आंसर, सप्तविंशत्यधिक त्रिवादनम। स्पेलिंग भी बहुत अच्छे से लिखा है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड, वी हैव स्टिल मोर टाइम। सो 335 सीख लेते हैं और एक नया रूल, थर्ड रूल इनफैक्ट। सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए पहले। पंचत्रिंशत मीन्स 35, पंचत्रिंशत 35, अधिक मोर ज्यादा, एंड 3 o'clock त्रिवादनम। सो पंचविंशत अधिक त्रिवादनम। ये आंसर अगर आपने लिखा एग्जाम में तो भी करेक्ट है, बट अगर हमें इसको शॉर्ट करना है, कंबाइन करना है, देन हमें एक रूल अप्लाई करना है। वो रूल ऐसा है, सबसे पहले हमें करना है, जब भी हमें ये हाफ ट दिखेगा एट द एंड ऑफ द वर्ड एंड इट इज फॉलोड बाय स्वर, whenever there is a half t and it is followed by swar, then t changes to the, t changes to the. Whenever there is a half incomplete halant t at the end of the word followed by swar vowel, then t changes to the. तो द बना दिया हमने, and now we have to mix that in the, so it will become complete the, and hence my answer is पंचत्रिंशदधिक त्रिवादनम। लास्ट टाइम एक बार रिपीट कर रही हूँ, whenever the word is ending in incomplete or halant t and it is followed by swar vowel, then t changes to the। पहला एक स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया, त का द बना दिया। नाउ आई हैव टू कंबाइन दैट अ विथ द को अ से कंबाइन कर दिया तो द कंप्लीट हो गया। ये लाइन हमें बताता है कि ये हाफ है, इसमें एक वॉवेल मिला दिया तो ये हो गया कंप्लीट। सो माय आंसर इज पंचत्रिंशदधिक त्रिवादनम। पंचत्रिंशदधिक त्रिवादनम। अगर ये आपने सीख लिया तो आप 30 के टेबल में से 31, 32, 33 कुछ भी लिख सकते हो। इनफैक्ट 40 के टेबल में से भी कुछ भी लिख सकते हो। So do you have any doubt? Please let me know because it is very important. And also write it down, note it down, copy it, take a screenshot.
Okay, Ayush is saying no doubt, ma'am. Is there anybody who have doubt or finding it difficult to remember? Please let me know. I'll help you. Okay. So I hope it is easy and clear to you. Oh, someone is saying I have a doubt. Who's that? Aryan again. Okay. Yes, Aryan. What doubt you have? What is the doubt? Hello, Aryan. Miss, without this the changes to the. दिस इज अ संधि रूल बेटा. वो संधि रूल हम एकदम डिटेल में बाद में सीखने वाले हैं. डोंट वरी. अभी सिर्फ आपको याद रखना है व्हेनेवर दिस हाफ ट इज फॉलोड बाय स्वर. अगर उसके आगे स्वर आ रहा है देन देयर इज अ रूल कि द चेंजेस टू ट. सॉरी, ट चेंजेस टू द. Yes. ओके. या सो आई होप अभी ये जो पर्टिकुलर नया रूल है आप सीख रहे हो. ई प्लस अ इज इक्वल टू योर ट चेंजेस टू द प्लस अ इज इक्वल टू कंप्लीट द. ये सब आप लिख रहे हो, ये आप रीड करके आओगे नेक्स्ट लेक्चर में. तो आज मैं ज्यादा बर्डन आपके ऊपर नहीं देती हूँ. बहुत सारी नई चीजें आपने सीखी है. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. विल स्टॉप हियर एंड समवन इज आस्किंग अबाउट अ फर्स्ट लेक्चर.